Good evening, all of you. I hope you all are well. Okay, and you are watching my videos and you are liking my videos. Okay, if you are liking, do like and comment. Whatever the issue is there, do comment and ask. Okay, I'll try to solve your issues. Okay, so today is the part 2 of paper solving of previous year 2025 serious paper. Okay, chaliye. So let's start with the explanation. So the first question is, each of the following sentences in this section has a blank space with 4 options. Okay, you will be getting 4 options and 1 blank space. Now what do you have to do here? Select whichever preposition determiner. Preposition you all know. You all know preposition. Determiner. Determiner is nothing but whatever the thing which we write before noun. Means it gives information about noun, it gives information about quantity, it gives information about quality. Okay, this is determiner. Like you can say that article is a determiner, then possessive noun is determiner, demonstrative is determiner. So these are the determiner which gives information about noun. Or phrasal verbs. Okay, you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. Okay, now you have to select the appropriate answer for this. So let's start. There is no truth in dash. There is no truth in dash claims, even though they have been cleverly stated. Okay, so there is no truth in dash claims even though they have been cleverly stated. Now you have to fill the blanks with thus, there, supposed and these. Okay, so what is the meaning? First of all, what is the meaning of the sentence? Whenever you are solving these types of questions or the fill in the blanks, first you have to understand the meaning of the sentence. If you know the meaning of the sentence, that will be easy for you to fill the blank. सो देर इज़ नो ट्रुथ, मतलब यहाँ पे कोई भी सच्चाई नहीं है. किस में सच्चाई नहीं है? डैश क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड. भाई जो भी प्रस्तुत किया गया है, जो भी प्रेजेंट किया गया है, जो भी क्लेम्स है उसको प्रस्तुत किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, भाई जितने भी चालाकियों से, चतुराई से आपने प्रेजेंट किया है, बट उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. जो भी आपने एविडेंस प्रेजेंट किया है, आपने जो भी प्रूफ प्रेजेंट किया है, ठीक है, भले ही चतुराई से आपने प्रेजेंट किया, बट उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है. तो अब हमें फिल करना है. द ऑप्शंस आर दस, देयर, सपोज्ड एंड दीज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, so first option is thus. Thus means in this way. Okay, in this way. So there का, ये there का मतलब क्या होता है? ये there का मतलब होता है डायरेक्शन, और ये there का मतलब क्या होता है? THER, ये होता है ओनरशिप. ठीक है, ये है ओनरशिप बताता है. ठीक है, तो ये फ़र्क जो है आपको पता होना चाहिए. देयर में फ़र्क होना चाहिए, बिकॉज हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, ये देयर में और ये देयर में, फिर देन में और ये देन में, तो हम बहुत बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इसका मीनिंग समझना है. तो यहाँ पे ये देयर का कोई काम नहीं, यहाँ दस का कोई काम नहीं है, सपोज का यहाँ पे कोई काम नहीं. आप फिल करके देखिए. देयर इज़ नो ट्रुथ इन दस क्लेम्स, कोई ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है. देयर इज़ नो ट्रुथ इन देयर क्लेम्स, तो ये देयर तो काम नहीं आएगा. हाँ, एक टाइम पे ये देयर होता तो हम लिख भी देते. ठीक है, सपोज भी काम नहीं आएगा. तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये है दीज. और दीज भी आप क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज आप यहाँ भी देख सकते हैं क्लेम्स के बारे में बात किया गया है. क्लेम्स क्या है? यहाँ पे प्लूरल है. क्लेम्स क्या है? यहाँ पे प्लूरल, इसलिए हम बोलेंगे दीज क्लेम्स. सो देयर इज नो ट्रुथ. अगर ये क्लेम होता तो दिस क्लेम हम बोलते सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल दिया गया है तो हम उसको बोलेंगे दीज क्लेम्स. देयर इज नो ट्रुथ इन दीज क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड. चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट है द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल. इंटेंडेड का मतलब क्या होता है कि भाई बनाया गया है. ब्रिज एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है. क्या, कौन से पर्पस के लिए बनाया गया है? कि भाई पीपल को अलाउ किया जाए, पीपल के लिए बनाया जाए, ताकि वो एक रास्ते से, एक साइड से दूसरे साइड तक उसको क्रॉस कर सके. ठीक है, आपने स्टेशंस पे देखा होगा कि भाई एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना तो ब्रिज बनाए गए हैं.
ठीक है भैया, लेकिन हम इंडियंस जो है हम कुछ ज़्यादा ही शॉर्टकट हम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधा ट्रैक से चले जाते हैं। ठीक है भाई, हमारे लिए गवर्नमेंट ने हमने हमारे लिए ब्रिज बनाया गया है, बट हम ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो हमारे लिए लॉन्ग रूट है। ठीक है, वो लॉन्ग रूट है, तो हम शॉर्ट रूट फॉलो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रैक से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट रूट लेते हैं, तो भाई हमारी लाइफ का भी शॉर्ट रूट बन जाता है वो, तो इसे ध्यान रखिए। The bridge was intended to allow people to cross dash to the other side of the river and get to work. अब हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन है ऑन, ओवर, अक्रॉस एंड डाउन है, और ये सब क्या है, ये हमारे प्रेपोजिशंस है। ठीक है, ये क्या है, हमारे प्रेपोजिशन से। भाई अब प्रेपोजिशन ऑन जो है, प्रेपोजिशन ऑन क्या होता है, हम सरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑन डाल के देखिए क्या ये अप्रोप्रिएट है। द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस ऑन टू द अदर साइड, गलत है। ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है भाई, किसी ऊपर, किसी के ऊपर। ठीक है, अभी जैसे ओवर द ब्रिज अगर आपने सुना होगा, नीचे पानी है और ऊपर ब्रिज बना है, तो क्या ये ओवर ब्रिज बोलते हैं हम उसको। ठीक है, सो द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस ओवर टू द ब्रिज, ओवर टू द अदर साइड, रॉन्ग। अक्रॉस, अब भाई अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड तक जाना, एक साइड से दूसरे साइड पर जाना। जैसे रिवर है बीच में, तो भाई एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, उसे हम कहते हैं अक्रॉस। सो द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड गेट टू द वर्क। ठीक है, तो भाई ये सही आंसर है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिज का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिवर के एक छोर से दूसरे छोर पर जा सके। डाउन जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भाई ये तो सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये भाई सिंपल है, अगर आपने प्रेपोजिशन अच्छे से किया है तो। ठीक है, प्रेपोजिशन के जितने भी टाइप्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, सॉरी, प्रेपोजिशन में जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, इन का इस्तेमाल कब करते हैं, एट का इस्तेमाल कब, जैसे अब एट का इस्तेमाल है वो टाइम के लिए भी करते हैं, डायरेक्शन के लिए भी, पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। ऑन का इस्तेमाल हम टाइम के लिए भी करते हैं, पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं। एट का भी, इन का भी इस्तेमाल हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो भाई उनके अलग अलग यूजेस है। अब एक बार देखिए, समझिए, तो ये ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आई शेल नॉट रेस्ट, क्या बोला गया है, आई शेल नॉट रेस्ट डैश आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाउंड द ट्रुथ। आई शेल नॉट रेस्ट, मैं रेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे रेस्ट नहीं करना चाहिए। आई शेल नॉट रेस्ट, मुझे रेस्ट नहीं करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए? आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाउंड द ट्रुथ। ठीक है, मैं इस मैटर के बॉटम तक जाऊंगा, मतलब अंदर तक जाऊंगा और ट्रुथ को जो है फाइंड करूंगा, तब तक मैं रेस्ट करने वाला नहीं हूं। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, आफ्टर, वाइल, फॉर, अंटिल। अब भाई ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये क्या है, ये हमारे कंजंक्शंस है। क्या है, हमारे कंजंक्शंस। ठीक है, चलिए, अब आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर तो बहुत इजी है। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। ठीक है, आफ्टर यू, आफ्टर दिस वर्क आई विल डू द अदर वर्क। सो एक काम के हम बाद में बोलते हैं आफ्टर। सो आई शेल नॉट रेस्ट आफ्टर आई हैव गॉन, तो आफ्टर तो नहीं आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, आफ्टर भाई आप डाल के भी देखिए, यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर नहीं लग रहा है। आफ्टर, आई शेल नॉट रेस्ट आफ्टर आई हैव गॉन, नो, अप्रोप्रिएट नहीं है, तो भाई ये गलत है। ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट जाते हैं, वाइल। वाइल, आई शेल नॉट रेस्ट वाइल आई हैव गॉन टू द बॉटम, नो, वाइल भी नहीं लग रहा है। ठीक है, वाइल का मतलब क्या होता है? सपोज अगर आप एक काम कर रहे हैं, उसी काम के बीच में एक और दूसरा काम हो जाता है, उसे हम बोलते हैं वाइल। ओके, व्हेन आई ओके, वाइल का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी एक काम चल रहा है, उसमें एक और काम करना। जैसे हमें क्या आदत होती है, हम पढ़ते पढ़ते हमें एक आदत होती है कि हम मोबाइल उठा के रील्स देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? कैसे सेंटेंस बनेगा? आई स्लीप वाइल स्टडिंग, आई स्लीप वाइल स्टडिंग। ओके, आई यूज मोबाइल, आई वॉच रील्स वाइल स्टडिंग।
ठीक है, तो भाई एक काम हो रहा है उसी बीच में दूसरा काम करना, तो इसके लिए हम वाइल का यूज़ करते हैं। फॉर, आई शैल नॉट रेस्ट फॉर आई हैव गॉन, यहाँ पे भी गलत है। भाई आप हर एक ऑप्शन को आप लगा के देखेंगे ब्लैंक में, तो आपको समझेगा कि भाई ये मीनिंगफुल आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अनटिल, I shall not rest until I have gone to the bottom। अब until का मतलब क्या होता है? until का मतलब, until जो है समय बताता है। until क्या है? टाइम बताता है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी पढ़ाई नहीं हो जाती है। ओके, आई विल नॉट ईट फूड until I finished my work, until I finish my study। ठीक है, तो until का मतलब क्या होता है? समय बताता है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, तब तक मैं इंतजार करूंगा अपने काम खत्म होने का। तो यहाँ पर रहेगा आई शैल नॉट रेस्ट until I have gone to the bottom of this matter and found the truth। मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं भाई सच्चाई के तह तक नहीं चला जाऊं और ट्रुथ को ढूंढ के ना लेके आऊं। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है until। अब भाई देखिए, ये प्रेपोजिशंस है, भाई कंजंक्शंस है, भाई ये सब चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं कि भाई कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, अगर आपने ये सब कर रखे तो भाई ये देखो ईजी हो गया है यहाँ पर। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन डैश द फैमिली विजिट। ठीक है, अब भाई यहाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है? भाई बहुत सारे कारणे हैं ये लोकेशन चूज करने के लिए, फैमिली विजिट फॉर फैमिली। ठीक है भाई, हम जब फैमिली विजिट का या फैमिली जर्नी का हम जब प्लान करते हैं, फैमिली ट्रिप का जब हम प्लान करते हैं, भाई हम बहुत सारे लोकेशंस ढूंढते हैं कि भाई ये फैमिली के लिए अच्छी है कि नहीं है ना, वहाँ पे रहने की जगह अच्छी है कि नहीं है, खाना पीना अच्छा है कि नहीं है, घूमने फिरने वाली जगह अच्छी है कि नहीं। हम काफ़ी प्लानिंग करते हैं, तो काफ़ी सारे चॉइसेस होते हैं, तो उस चॉइसेस में से हम एक चॉइस अपना बनाते हैं और फिर हम वहाँ चले जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, देयर आर सेवरल रीजंस, भाई बहुत सारे कारणे हैं ऐसे जो मैंने ये लोकेशन चूज़ किया है फैमिली विजिट के लिए। चलिए अब हम देखते हैं, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन टू द फैमिली विजिट, इन द फैमिली विजिट, तो इन तो नहीं होगा, फॉर द फैमिली विजिट और फ्रॉम मतलब नहीं होगा। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम एक ओरिजिन होता है, ओरिजिन। अगर मुझे कोई बोल रहा है मैं कहाँ से आ रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम कमिंग फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। ओके, आई एम राइटिंग दिस लेटर, सिंस और फ्रॉम। ठीक है, दोनों सही है, दोनों आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, सही आंसर जो है आपका फॉर आएगा। There are several reasons behind my choice of location for the family visit। क्या है आपका? For the family visit। ठीक है, टू का मतलब क्या होता है? टू का मतलब हम डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, टू और टूवर्ड्स ये क्या बताते हैं? डायरेक्शन बताते हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। टू का मतलब क्या होता है? हम एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है, और टूवर्ड्स मतलब क्या है? डेस्टिनेशन फिक्स नहीं, स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, बट हम उस रूट में जा रहे हैं, उस रास्ते में जा रहे हैं, तो इसलिए टूवर्ड्स होता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुंबई। टू मुंबई मतलब मेरा डेस्टिनेशन मुंबई है, भाई मैं बस में बैठूंगा, मेरी बस जाकर रुकेगी मुंबई में। आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुंबई, भाई मैं जा रहा हूँ मुंबई की तरफ, बट मुंबई नहीं जा रहा हूँ, मुंबई की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्क होता है। तो यहाँ पर आएगा, देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड माई चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर द फैमिली विजिट। फॉर का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड। ओके, आई एम बेस्ट फॉर दैट पोजिशन, आई एम बेस्ट फॉर दैट पोजिशन। ठीक है, मैं बहुत ही सही हूं उस पोजिशन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑल ह्यूमन बींग्स ought to have a moral center to fall back dash in times of crisis। ठीक है, अब यहाँ पे ought to का मतलब क्या होता है? ought to का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी ड्यूटी है। अब क्या ड्यूटी बोली गई है? ऑल ह्यूमन बींग्स ought to have a moral center to fall back dash in times of crisis। Okay, so what is the meaning of this? All human beings ought to have a moral center to fall back dash in times of crisis। Okay, to fall back dash in times of crisis। Okay, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर एक पर्सन को, एवरी पर्सन शुड हैव गुड मॉरल वैल्यूज। ठीक है, हर पर्सन के पास भाई मॉरल वैल्यूज जो है, भाई अच्छी मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए कि भाई डिफिकल्ट टाइम में वो काम आए।
ठीक है, आप बुरे हालातों में हैं, आप बुरे हालातों में तो भाई आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो मॉरल वैल्यूज अच्छे होंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। सो ऑल ह्यूमन बींग्स, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन, इनटू, ओवर एंड अलोंग। ओके, तो भाई अगर आपने ईडियम्स कर रहे होंगे, ईडियम एंड फ्रेजेस अगर आप कर रहे होंगे तो उसमें एक फ्रेज है टू फॉल बैक ऑन, उसमें एक फ्रेज है टू फॉल बैक ऑन। टू फॉल बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट, रिलाई करना, ठीक है, मीन्स टू रिलाई ऑन समथिंग। तो आप किसके ऊपर ये रिलाई करने के लिए बोल रहे हैं? आपके मॉरल वैल्यूज के ऊपर रिलाई करने के लिए बोल रहे हैं। भाई जितना भी गलत बुरा समय आपका चल रहा है, लेकिन अपने मॉरल वैल्यूज, अपने संस्कारों के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अगर विश्वास है तो आप हर काम कर सकते हैं। सो ऑल ह्यूमन वैल्यूज ought to have a moral center to fall on, to fall back on in टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। तो इनटू नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, अलोंग नहीं आएगा, तो सही आंसर है आपका ऑन, ठीक है। तो ये फ्रेज है, अगर आप इडियम एंड फ्रेजेस अगर आप कर रहे हैं तो भाई ये फ्रेज है, ये फ्रेज आपको अगर आप कर रहे हैं तो आपको तुरंत ही आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइटम्स सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स आर गिवन। भाई ये अब जो है बहुत लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है, बहुत ही लोगों को डिफिकल्ट पड़ता है। क्यों डिफिकल्ट पड़ता है? क्योंकि भाई ये जो है ना, ये सिमिलर साउंड करते हैं, बिल्कुल होमोनीम सही, बिल्कुल सिमिलर, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल अलग अलग है। फॉलोड बाय सेंटेंसेस wherein in each sentence one of these words has been fused and underlined. You are required to identify those sentences in which these words have been used correctly. Okay, and mark your response in answer sheet accordingly. अब भाई आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस में भाई इनको यूज किया गया है। अब आपको बताना है कि भाई ये करेक्टली कौन से सेंटेंस में यूज किए गए हैं, या तो एक में, या तो 2 में, या तो तीनों में, ठीक है। जैसा है आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। आप ऑप्शंस क्या दिए गए देखो, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 3 ओनली, 1 and 1, 2 and 3, 1 and 2 and, ठीक है। तो आपको 3 दिए गए हैं जो कि एक तरीके से साउंड करते हैं, और आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए गए हैं, हर एक को यूज करके एक सेंटेंस बनाया गया है। अब आपको बताना है कि भाई सेंटेंस में इनको रॉन्गली यूज किया गया है कि पॉजिटिवली यूज किया गया है। तो अभी हमें चले देखिए। ओके, सो फर्स्ट पेयर का मतलब क्या होता है? देखो प्रोनाउंसिएशन इनका एक ही है, पैर पैर पैर। ओके, पैर नहीं, हमारे पैर नहीं, हमारे जिसम चलते वो पैर नहीं, इट्स पैर पैर एंड पैर। ओके, सो पहला वाला जो पैर है, पहला वाला जो PARE पैर है, उसको बोलते हैं रिड्यूस, मतलब कम करना। तो चलिए हम इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। ठीक है, इसको सही प्लेस किया गया है, सही प्लेस किया है। ये पेयर का मतलब PARE पेयर का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करना। और सेंटेंस क्या बनाया है? इट इज इंपॉर्टेंट टू पेयर, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट टू ट्रिम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री टू प्रिवेंट एक्सेसिव ग्रोथ। भाई ट्री को हम क्या करते हैं, जब अभी देखिए अभी बारिश का समय शुरू हो चुका है, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश हो रही है हर जगह पे, क्या करते हैं हम? अभी जो हमारे जो कैंटोनमेंट है या गवर्नमेंट है, क्या करना शुरू कर देते हैं? वो पेड़ों को ट्रिम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इट मीन्स वो पेड़ों को पेयर करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है बारिश जब हो तो वो जो ब्रांचेस है वो गिरे नहीं किसी के ऊपर या रास्ता ब्लॉक ना करे। ठीक है, तो भाई वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेसिव ग्रोथ ना हो जाए, इसलिए थोड़ा उसको ट्रिम करना ज़रूरी है। तो ये सही है, यहाँ पे उसको सही यूज़ किया गया। अब दूसरा करते हैं ये पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ना। देखिए हम जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? पेयर करते हैं। जैसे अगर आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं? पेयर द डिवाइस। ठीक है, आपके हेडफोन से आप हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, तो वो क्या बोलते हैं? पेयर, तो जोड़ना। तो चलिए हम देखते हैं, द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, ये भी सही है। द पेयर ऑफ ट्रीज मतलब वहाँ पे 2 ट्री है, दोनों की जो जोड़ी है वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, द पेयर ऑफ ट्रीज लुक्ड आइडेंटिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस। भाई दूर से देखा जाए तो दोनों ट्री बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक ही लंबाई है, एक ही चौड़ाई है, भाई ब्रांचेस एक ही जैसे है, पत्ते भी एक जैसे, कलर भी एक जैसा है। ठीक है, तो ये सही किया गया, यहाँ पे भी सही है। पेयर का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल, जोड़ी। ठीक है, जोड़ना, ये पेयर भी सही किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट
ये है, दूसरा है, थर्ड वाला है पेर। अब ये पेर मतलब क्या होता है? फ्रूट, नाशपाती, नाशपाती। ठीक है, तो ये होता है फ्रूट। The pear tree was revered by the children of a locality for the bounty it offered each year. ठीक है, अब यहाँ पे भी पेयर ट्री मतलब क्या हो गया? मतलब वो फ्रूट से रिलेटेड बात किया गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही बोला गया है। तो आपको जो सही उत्तर है वो है 1, 2 एंड 3, बिकॉज ये तीनों के तीनों जो है ऑल्दो सेम साउंड करते हैं, ऑल्दो मीनिंग अलग अलग है, लेकिन उनको बिल्कुल करेक्टली उनके सेंटेंस में उनको फिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है, चलिए अब हम 27 क्वेश्चन पे करते हैं। 27 क्वेश्चन क्या है? 27 क्वेश्चन है, पहला है सेऑन्स। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेऑन्स, सेऑन्स, सेऑन्स। ठीक है, पहला प्रोनाउंसिएशन है इसका सेऑन्स। सेकंड है स्कॉन्स एंड थर्ड है स्कॉन। ओके, चलिए अब हम पहला समझते हैं सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है कि स्पिरिचुअल मीटिंग। ठीक है भाई, कुछ लोगों को आदत होती है, वो क्या करते हैं? वो स्पिरिट से बात करते हैं। ठीक है, उनके पास कुछ टोटका वोटका रहता है। ठीक है, वो कुछ तो भी रंगोली वंगोली बनाते हैं। ओके, और फिर वो क्या करते हैं? ऐसे बीच में कैंडल वेंडल रखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो स्पिरिट्स को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो ये है सेंस। ठीक है, क्या है ये? सेंस। तो चलिए हम देखते हैं। Those who practice spiritualisms are at times seen to participate in a seance. ठीक है, तो पहला राइट है, क्योंकि पहला हमने देखा seance जो है वो स्पिरिचुअल लोगों से बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये सही है, पहला वाला सही लिखा गया। स्कॉन्स, स्कॉन्स का मतलब क्या होता है? स्कॉन्स आपने अगर देखा होगा कि आपने पुराने ज़माने में देखिए, आपने देखा होगा कि जो वॉल रहती हैं, वॉल में ना कुछ ऑर्नामेंट जो है, ठीक है, ऑर्नामेंट जो है वो उसको अटैच किया जाता है। ठीक है, अटैच किया जाता है मतलब एक होल्ड करने के लिए, और उसमें कैंडल लगाया जाता है। ठीक है, इट्स अ कैंडल होल्डर दैट इज अटैच टू अ वॉल। ठीक है, वॉल में अटैच किया जाता है और उसमें कैंडल लगाया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम स्कॉन्स। बेसिकली इट्स अ होल्डर। ठीक है, चलिए देखते हैं। दे एंजॉयड ईटिंग द स्कॉन्स दैट वाज सर्व्ड टू देम इन द एक्सक्लूसिव क्लब। तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसको रॉन्गली यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे स्कॉन्स मतलब क्या किया है? यहाँ पे इन लोगों ने कुछ खाने के वैरायटी के बारे में या खाने के कुछ आइटम के बारे में बात किया है, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है? दे एंजॉयड ईटिंग द स्कॉन्स दैट वाज सर्व्ड टू देम इन द एक्सक्लूसिव क्लब। क्लब में भाई उनको कोई खाना जो है उनको सर्व किया गया था, इसलिए वो स्कॉन्स। तो यहाँ पे स्कॉन्स का मतलब क्या होता है? स्कॉन्स का मतलब होता है एक कैंडल होल्डर। नेक्स्ट जाते हैं स्कॉन। अब भाई स्कॉन का मतलब क्या होता है? स्कॉन का मतलब होता है किसी एक टाइप ऑफ फूड जो कि बेक हो। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ बेक्ड, ओके, ठीक है, इट्स अ बेक केक, इट्स अ बेक फूड। तो चलिए हम देखते हैं। द स्कॉन रीडिंग ऑन द ग्राफ इंडिकेटेड द करेक्ट वैल्यू आउटपुट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये स्कॉन का मतलब क्या होता है? एक बेक केक के बारे में बात कर रहे हैं हम। और ये स्कॉन्स का मतलब क्या होता है? ये स्कॉन्स का मतलब होता है कि भाई एक कैंडल होल्डर। तो भाई दोनों को जो है रॉन्गली यूज़ किया गया। सिर्फ सही क्या यूज़ किया है? सेऑन्स। सही क्या यूज़ किया गया है? सेऑन्स। तो आपका जो आंसर है वो है ये, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1। चलिए अब हम आते हैं 28 पे। पहला वर्ड है ट्रूइज्म, सेकेंड वर्ड है ऑल्ट्रिज्म। पहला वर्ड है ट्रूइज्म एंड सेकेंड वर्ड है ऑल्ट्रिज्म। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या है? ट्रूइज्म। अब ट्रूइज्म मतलब क्या होता है भाई? ट्रूइज्म, ट्रू शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ट्रुथ के बारे में बात की जा रही है। इज्म, ट्रूइज्म, ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब होता है ट्रू मतलब सच्चाई, इज्म मतलब खुद से ही समझने वाली सच्चाई। जैसे भाई कि भाई चांद जो है, सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है, तो भाई वो सेल्फ एविडेंस है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से उगता है और वो खुद से सेट होता है जाके वेस्ट में। ठीक है, तो ये भाई खुद से सच्चाई है, ऑब्वियस ट्रुथ है, इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को इसके बारे में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, ये होता है तो हमें दिखता भी है, तो इसे हम कहते हैं ट्रूइज्म। खुद का ही ट्रुथ वो दिखाता है सामने।
रात होती है, खुद का ही ट्रुथ वो दिखा रहा है, सुबह हो रही है, खुद का ही ट्रुथ आपको दिखा रहा है सामने, ठीक है। पेड़ जो होते हैं वो हरे होते हैं, वो खुद का ही ट्रुथ आपको दिखा रहे हैं, हमको ज़रूरी नहीं है बताने कि भाई कि पेड़ जो है दूसरे कलर के होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रूइज्म मतलब खुद का ही सच्चाई जो है आपको बताना, सेल्फ, इट्स अ ऑब्वियस ट्रुथ, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ट्रूइज्म। तो चलिए हम देखते क्या इसको सही यूज किया गया है। दैट वन हैज टू रीप व्हाट वन सोज इज अ ट्रूइज्म, दैट वन हैज टू रीप व्हाट वन सोज इज अ ट्रूइज्म। भाई देखिए, रीप एंड सोज, भाई आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, भाई इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिख जाएगा। आज आप गलत कर रहे हैं, कल आपके साथ भी गलत होगा, ठीक है। इसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। भाई अगर ज़मीन आपने खोद रखी है, ज़मीन में अगर आप भाई आम का बीज डाल रहे हैं, तो पेड़ कौन सा उगेगा? आम ही उगेगा, केले का तो उगेगा नहीं, ठीक है, या तो फिर पपीते का उगेगा नहीं। तो आम की गुठली डाली है, अगर आपने आम का बीज डाला है तो ज़मीन में से आम ही निकलेगा, आम का पेड़ ही निकलेगा। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो ये सेल्फ ट्रूथ है, ऑब्वियस ट्रूथ है। भाई जो बीज ज़मीन में डालेंगे वही बीज उगकर बाहर आएगा, ठीक है। मैंने भाई ज़मीन खोदी, खेती करनी है, मैंने सोचा चावल उगाते हैं, मैंने डाल दिया चावल, ठीक है। लेकिन भाई थोड़े दिनों बाद देखा उसमें तो गेहूँ निकल रहे हैं, तो भाई ये गलत है। चावल डालें तो चावल ही निकल के आएगा, गेहूँ डाले तो गेहूँ ही निकल के आएगा, ये ऑब्वियस ट्रुथ है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इसको सही यूज़ किया गया है। दैट वन हैज़ टू रीप व्हाट वन सोज इन अ इज अ ट्रूइज्म, जो आप बोएंगे वही आप देखेंगे, वही आप काटेंगे। आज बुरा कर रहे हैं, कल बुरा ही देखेंगे, आज अच्छा कर रहे हैं तो आपको कल अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म मतलब क्या होता है, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? भाई खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करना, खुद से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करना, ठीक है। जैसे भाई हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में हम क्या करते हैं, अभी आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, पेरेंट्स को सुना होगा, चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे। ये क्या हो रहा है, हम अपने से ज़्यादा वो चार लोगों की फिक्र कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पास नहीं हुए तो चार लोग क्या बोलेंगे, आपकी शादी नहीं हुई वो चार लोग क्या बोलेंगे। वो चार लोग कोई नहीं होते हैं, वो चार लोग हमारी फैमिली के चार लोग होते हैं, है ना, कोई बाहर का चार लोग नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद से ज़्यादा वो चार लोगों की फिक्र करते हैं, तो हम कंसर्न नहीं करते हैं भाई, हम खुद का नहीं सोचते, हम वो चार लोगों का सोचते हैं। इसलिए चार लोगों को सोच के हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं, हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ओके, सो ऑल्ट्रुइज्म मतलब होता है कि भाई सेल्फलेस कंसर्न होना दूसरों के लिए, ठीक है। सेल्फलेस कंसर्न होना, बहुत ही केयर करना, दूसरों की खुशी हमेशा देखना, दूसरों की नीड्स को पूरा करना, और खुद की खुशी और खुद के नीड्स को जो भूल जाना। चलिए देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली यूज किया गया है, द ऑल्ट्रुइज्म अटर्ड बाय द सीयर कवर्ड द हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे है इसको गलतली और रॉन्गली इसको यूज किया गया है। सो द ऑल्ट्रुइज्म अटर्ड बाय द सीयर, ओके। सो सेकेंड वाला ऑल्ट्रुइज्म, अब यहाँ पे मतलब क्या है, द ऑल्ट्रुइज्म अटर्ड बाय द सीयर कवर्ड द हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। अब भाई यहाँ पे क्या बोला गया है, अटर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द निकालना मुंह से, ठीक है। अटर्ड अ वर्ड, मुंह से शब्द निकालना। बाय द सीयर का मतलब क्या होता है, जो फिलोसफर्स होते हैं ना, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो फिलोसफी झाड़ते हैं, है ना, ज्ञान की बातें करते हैं। कवर द हायर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, तो जो ज्ञानी लोग हैं भाई, द सीयर सेल्फलेस वर्ड्स, जो ज्ञानी लोग जो सेल्फलेस वर्ड्स निकाल रहे हैं, मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, अटर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इंक्लूडेड अ डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, भाई जो शब्द बोल रहे हैं, जो फिलोसफर्स है, जो शब्द बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सेल्फलेस है, वो सेल्फलेस है। सेल्फलेस मतलब खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो खुद के लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो बाहर निकाल रहे हैं, शब्द को बाहर लोगों के लिए बोल रहे हैं। सो इंक्लूडेड डीप स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो बहुत ही स्पिरिचुअल नॉलेज से भरा हुआ है। तो भाई यहाँ पे किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है,
ठीक है भाई, वो शब्दों से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ओके, और ना तो वो जो ज्ञानी है वो दूसरे के बारे में सोच रहा है, ठीक है, वो बस ज्ञान बांट रहा है, ठीक है, लेकिन किसी की मदद नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये ऑल्ट्रिज्म यहाँ पर सही आंसर नहीं बनता है। तो आपका सिर्फ पहला आंसर है ट्रोइज्म, तो आपका जो आंसर बनता है वो है ओनली 1। चलिए अब आते हैं हम 29 पे। 29 क्या बोलता है? 29 बोलता है कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंट और कॉन्सिक्वेंट, सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंट? कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलना, बुरा काम किया है तो उसका रिजल्ट आपको मिलना, ठीक है, रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, तो उसका रिजल्ट मिलना, उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर, कॉन्सिक्वेंट टू द डिसीजंस, कॉन्सिक्वेंट to the decision taken by the committee, a new set of procedures was brought into force. Consequent to the decision, भाई कुछ decisions हुए थे तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया है? डिसीजन किसने लिया था? कमिटी ने लिया था, ठीक है, कमिटी ने लिया था। क्या लिया था? अ न्यू सेट ऑफ प्रोसीजर्स वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स। भाई जब कमिटी ने कुछ डिसीजन लिया, कमिटी जब बैठी डिस्कस करने के लिए, तो डिस्कशन में क्या निकला? डिस्कशन में निकला कि भाई न्यू प्रोसीजर्स जो है उसको फोर्स में लेके आना चाहिए, ठीक है। तो भाई जब वो डिसीजन करने बैठे कमिटी ने, तब भाई उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो इसका रिजल्ट जो है, मतलब उस डिस्कशन का रिजल्ट जो है ये निकल कर आया। क्या निकल कर आया? कि भाई प्रोसीजर्स, वो न्यू प्रोसीजर्स लेके आए। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट का मतलब सही यूज़ किया गया है, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंट का मतलब वही होता है, ठीक है, कोई काम करना, उसके फल स्वरूप उसका रिजल्ट आपको पाना। तो यहाँ पे भाई कमिटी ने जब डिस्कस किया तो भाई उसका रिजल्ट वो सामने लेके आए। किस तरीके से लेके आए? प्रोसीजर्स के रूप में लेके आए। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंस? जब आप हिस्ट्री करते हैं तो हिस्ट्री में आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसका प्रभाव आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। भाई आपने अगर ललकारा है किसी को, ठीक है, आपने पोक किया है किसी को, तो भाई आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, मतलब उसका आउटकम जो है आपको देखना सुनने को मिलेगा, ठीक है। और ये कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, जो कि एक छोटे स्केल पे रहता है। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? एक लार्जर ब्रॉडर सेंस होता है इसका, ठीक है, ब्रॉडर सेंस होता है, एक वॉर का रूप भी ले सकता है कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया? द पास्ट इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस व्हेन वन इज विलिंग टू ब्रेवली फेस द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। द पास्ट इज ऑफ लिटिल कॉन्सिक्वेंस when one is willing to bravely face the challenges of the future। भाई जो पास्ट है वो तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए भाई फ्यूचर के लिए आप तैयार है, फ्यूचर के लिए तैयार है, तो यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंस है इसको सही इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अब अपने पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर के लिए आप सोच रहे हैं, फ्यूचर में जो चैलेंजेस फेस करेंगे उसको ब्रेवली फाइट करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। तो मतलब उसका आउटकम जो है वो आपको दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है बोथ 1 और 2, आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए नेक्स्ट आता है सीज, सीज एंड क्रीज। सीज, सीज एंड क्रीज, ओके। सो सीज, सीज एंड सीज। अब ये सीज का मतलब क्या होता है? SEIZE, सीज। सीज का मतलब क्या होता है? किसी को किसी भी चीज़ को ग्रैब करना, होल्ड करना, ठीक है। जब अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो हम क्या करते हैं? हम उस अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेते हैं। सीज कर लेते हैं मतलब SEIZE, सीज कर लेते हैं मतलब जल्दी से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, बिना सोचे समझे उसको होल्ड कर लेते हैं, तो ये होता है सीज। चलिए हम पढ़ते हैं, द कस्टमर्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज द कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है। अब जो भाई कस्टमर डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हमें सीज करना चाहिए। क्या सीज करना चाहिए? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स, ठीक है। कुछ कॉन्ट्राबैंड गुड्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्राबैंड? ओके, कॉन्ट्राबैंड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो इलीगल तरीके से कुछ गुड्स को लेके आए हैं, ठीक है, इलीगल तरीके से सीक्रेटली उसको लेके आए हैं, तो उस कंसाइनमेंट को, उस ऑर्डर को सीज कर लेना मतलब ग्रैब कर लेना,
ओके, सो द कस्टमर्स डिपार्टमेंट डिसाइडेड टू सीज मतलब ग्रैब करना, क्या करना, कंसाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्राबैंड गुड्स, जो कि इललीगल तरीके से जो लेके आए उसको सीज करना, अपने पास कंट्रोल कर लेना। तो यहाँ पर इसको सही यूज किया गया है। दिस इज सीज, CEASE, सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप कर देना, बिल्कुल कैंसिल कर देना। ठीक है, द कंपनी वॉज सीज्ड, द कंपनी वॉज सीज्ड मतलब भाई कंपनी का कुछ इलीगल धंधा था। ठीक है, इलीगल धंधा था या फिर उसने कुछ गलत काम किया, क्या कर दिया गया, कंपनी उसकी स्टॉप कर दी गई, बंद कर दी गई है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, टू इम्प्रूव रिलेशंस द टू पार्टीज डिसाइडेड दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम शुड सीज। ठीक है, टू इम्प्रूव रिलेशंस, भाई रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, ओके, व्हाट डू मीन बाय हॉस्टिलिटीज, हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है अनफ्रेंडली। ठीक है, अनफ्रेंडली बिहेवियर। ओके, तो टू इम्प्रूव द रिलेशंस द टू पार्टीज डिसाइडेड दैट द हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम शुड सीज, हॉस्टिलिटीज बिटवीन देम शुड बी सीज। तो यहाँ पे सीज का मतलब क्या हो गया, स्टॉप करना, स्टॉप हॉस्टाइल बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया सीज का मतलब होता है स्टॉप करना, तो इसको सही इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्रीज, क्रीज का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे जो शर्ट्स होते हैं या हमारे जो हम जो कपड़े पहनते हैं, आप उसको जब फोल्ड करके रखते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, लाइन आ जाती है, क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है, फिर हम उसको क्या करते हैं, आयरन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रीज, फोल्ड। ठीक है, फोल्ड इन फैब्रिक और लाइन आ जाती है तो उसे हम क्रीज बोलते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, मिलिट्री पर्सनल आर रिक्वायर्ड टू बी अटायर्ड इन ट्राउजर्स विथ अ नाइफ एज लाइक क्रीज। भाई उनका जो अटायर रहता है, मिलिट्री पर्सनल जो रहते हैं उनका जो अटायर रहता है, उनका जो क्लोथ रहता है, भाई इस तरीके से उनके आयन होने चाहिए कि भाई नाइफ एज मतलब इतने कड़क उनका जो आयन होना चाहिए कि भाई जो एजेस है वो बिल्कुल नाइफ की तरह शार्प होने चाहिए। ठीक है, एजेस जो है बिल्कुल नाइफ की तरह शार्प होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं क्रीज, क्रीज बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो इसको सही इस्तेमाल किया गया, तो आपका जो आंसर है ये है 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइटम्स एन ईडियम और अ प्रोवर्ब इज गिवन। भाई ईडियम एंड फ्रेजेस आपका रेगुलरली चल रहा है, आपको वीडियोस भी पोस्ट किए गए हैं, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा अगर ईडियम एंड फ्रेजेस का, तो वो यूजफुल है आपके लिए। इन द फॉलोइंग आइटम्स एन ईडियम और अ प्रोवर्ब इज गिवन, सिलेक्ट द रिस्पॉन्स दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द ईडियम और द प्रोवर्ब एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट। चलिए अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम एंड फ्रेजेस ये होते हैं भाई, जो भी दिया गया है, जो भी फ्रेज दिया गया, ईडियम दिया गया, आपको लिटरल मीनिंग में नहीं जाना। लिटरल मतलब जो फ्रेज दिया गया उसको भाई एज इट इज उसको कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज कन्वर्ट नहीं करना है। जैसे है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल, भाई हम इसको जब हमें समझ नहीं है इसकी मीडियम फ्रेजेस की, भाई हम उसको एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट करेंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर मतलब क्या, मतलब अगर मैं लिटरल मीनिंग में जाऊँ तो क्या होगा, इसका मतलब कि घर में जब हम मुर्गी बनाते हैं, घर में जब हम चिकन बनाते हैं, तो बिल्कुल दाल चावल की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि भाई घर का खाना जब हम कुछ भी बना ले, अच्छा वो घर का जैसे ही लगता है, बाहर का टेस्ट तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो लिटरल मीनिंग में नहीं जाना है आपको। लिटरल मीनिंग में उसका डिफरेंट मीनिंग होता है, इसे हम कहते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। चलिए हम फर्स्ट जाते हैं। फर्स्ट वाला है लिसन विथ हाफ एन ईयर। लिसन विथ हाफ, अब भाई मैं इसके लिटरल मीनिंग पे जाऊं अगर, तो मतलब मैं आधा कान काट दूं या आधा कान बंद कर दूं और फिर सुनूं, यही मीनिंग है ना। अगर मैं लिटरल मीनिंग में जाऊं तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, लिटरल मीनिंग इसका यही हो रहा है ना, या तो मैं आधा कान काट दूं या तो आधा कान बंद कर दूं, ढक दूं और फिर सुनूं। नहीं, इसका मीनिंग कुछ और है, इसको आपको सही से ढूंढना है और लिखना है। नॉट पे फुल अटेंशन, बीइंग इम्पार्शियल, बीइंग इम्पेरियस और लिसनिंग विथ आयरॉनिक डिस्टेट। चलिए ए वन बाय वन इसको समझते हैं। नॉट पे फुल अटेंशन, नॉट पे फुल अटेंशन मतलब भाई हमारी आदत होती है जब हमें कोई कुछ बोलता है तो हम क्या करते हैं, हमें कोई ज्ञान देता है या हमें कोई अच्छी बातें बताता है तो हम क्या करते हैं भाई, हम हमारे
कान को जो है हम भाई आधा ही सुनते हैं, पूरा नहीं सुनते हैं। लेकिन भाई हमको जब कोई बुरी चीज़ बताता है ना भाई, हम दोनों कान खोल के सुनते हैं, ठीक है। और जब अच्छी चीज़ बताते तो भाई हम कान बंद करके सुनते हैं, ठीक है। तो नॉट पे फुल अटेंशन, बिल्कुल अच्छे से ध्यान नहीं देना, आधा ध्यान देना, पूरा ध्यान नहीं देना। बीइंग इम्पार्शियल, बीइंग इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है भाई, इक्वालिटी नहीं रखना। टू नॉट टेक साइड्स इन अ मैटर, टू नॉट टेक साइड्स इन अ मैटर। अब इसमें क्या होता है भाई, हमारे घर में जब भाई बहन होते हैं, ठीक है, बहन जो है भाई के ऊपर अत्याचार करती है, बहन जो है भाई के ऊपर अत्याचार करती है, फिर उसके बाद भाई पेरेंट्स जो होते हैं किसका साथ देते हैं, बहन का साथ देते हैं। इधर क्या हो गया भाई, इम्पार्शियलिटी हो गई। इम्पार्शियलिटी किसके साथ हो गई, बेचारे भाई के साथ हो गई। गलती भाई की थी नहीं, बहन ने पोक किया, बहन ने उकसाया भाई को, लेकिन सपोर्ट किसका मिला, सपोर्ट किसको मिला, बहन को मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गई, एक ही साइड लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये काम का नहीं है। बीइंग इम्पेरियस, बीइंग इम्पेरियस का मतलब क्या होता है, एरोगेंटली एक्ट करना, एरोगेंटली बिहेव करना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है। लिसनिंग विथ आयरोनिक डिस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है। अगर आपने एक वर्ड सुना होगा सरकाजम, सरकाजम, तो क्या होता है, लिसनिंग विथ आयरोनिक डिस्टेट, मतलब भाई इस तरीके से सुनना कि हमें लगे कि वो सरकाजम ही है, ठीक है, वो हमें उल्टा ही बोल रहा है। तो ये भी सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर क्या है, नॉट पे फुल अटेंशन। लिसनिंग विथ हाफ एन ईयर, ये तो बहुत सिंपल था, ये तो भाई देख के ही समझ गया था, बट तो भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई बाकी का मतलब क्या है। तो ये तो देख के ही समझ गया कि भाई लिसनिंग विथ हाफ एन ईयर मीन्स नॉट पे फुल अटेंशन, तो ये सही है आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, डाइड इन द वूल, डाइड इन द वूल। चलिए अब हम इसका आंसर समझते हैं क्या है। ओके, सो डाइड इन द वूल मतलब अगर हम इसका लिटरल मीनिंग में जाए तो लिटरल मीनिंग क्या होगा कि भाई वूल को फैब्रिक के प्रोसेस में जाने से पहले उसको सुखाया गया, ठीक है, वूल को फैब्रिक के प्रोसेस में जाने से पहले उसको सुखाया गया। तो भाई हम लिटरल मीनिंग में नहीं जाना, हमें एक्चुअल मीनिंग में जाना। अब पहले आते हैं, चेंजिंग नोशंस बिकॉज ऑफ अ फ्लफी माइंड। चेंजिंग नोशंस, भाई जब हम कंफ्यूज रहते हैं, जब हम डिसाइड नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, हम बार बार चेंज करते हैं, हमारे डिसीजंस को बार बार चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ये कोई काम का नहीं है, इसको हटा दो। अज्यूमिंग अ डिफरेंट कलर, ये भी हटा दो। अज्यूमिंग डिफरेंट कलर, भाई यहाँ पे कलर की क्यों बात हो रही है, ये भी हटा दो। अडप्टिंग टू कंडीशंस, अडप्टिंग टू कंडीशंस मतलब फ्लेक्सिबल, हम अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेना, जैसा सिचुएशन है वैसा खुद को चेंज कर लेते, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे इसका भी कुछ काम नहीं है। अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भाई स्ट्रांगली लॉयल, ओके, और सेट इन वंस बिलीफ, भाई आप लॉयल है, बिल्कुल लॉयल है। जैसे एनिमल, जैसे हम डॉग की बात करें, डॉग क्या होते हैं भाई, बिल्कुल लॉयल होते हैं, वो स्ट्रांगली लॉयल होते हैं अपने मालिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे है डाइड इन द वूल, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्ट, ठीक है। तो अगर आप लिटरल मीनिंग पे भी जाते हैं डाइड इन द वूल, तो भाई जब वूल को सुखाया जाता है, ठीक है, वूल को सुखाया जाता है, वूल को सुखाया जाता है तो क्या होता है भाई, वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है, आगे के प्रोसेस के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। तो वैसे अगर हम यहाँ पे भी मीनिंग पे जाए, अनचेंजिंग एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन, ठीक है, स्ट्रांगली लॉयल और सेट इन वंस बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास करना, लॉयल रहना, तो ये सही आंसर यहाँ पर बनता है। यहाँ पर भी इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रांग बन रहा है, तो यहाँ पर भी भाई हम स्ट्रांग है, अब हम लॉयल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट्स स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब मीनिंग क्या है यहाँ पर, भाई जो कुत्ता सो रहा है, ठीक है, जो कुत्ता भाई उस कुत्ते को जो झूठ बोल रहा, जो झूठ बोलने वाला कुत्ता है उसको सोने दो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है, सोता वो कुत्ता झूठ बोलता है, ठीक है, चले जाने दे। सो ऑप्शन है, लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, लेट थिंग्स रिमेन एज दे आर बिकॉज ऑफ लेजीनेस, भाई जो काम है उसको रहने दो हमारे आलस के कारण, ठीक है, जो काम है उसको रहने दो हमारे आलस के कारण। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है, हमें लिटरल मीनिंग मिल जाएगी भाई सोता वो कुत्ता, लेजी डॉग झूठा कुत्ता,
ठीक है। नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस मे एक्सरबेट मैटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, नॉट इंटरफेरेंस इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सरबेट मैटर्स। भाई वो हालात जो है, जो मैटर है वो पहले से ही भाई खराब है, उसमें और इंटरफेयर करके उस हालत को और खराब मत करिए, ठीक है, उस मैटर को और खराब मत करिए। तो नेक्स्ट आता है नॉट स्टोक अ डेंजरस सिचुएशन, नॉट स्टोक अ डेंजरस सिचुएशंस मतलब क्या है, ठीक है। नॉट स्टोक अ डेंजरस सिचुएशन, भाई जो सिचुएशन जो पहले ही खराब थी, जो पहले ही हो चुकी है, उसको बार बार पोक कर कर कुरेद कर वापस लेके मत आइए, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो सिचुएशन और सामने आती जाएगी, क्योंकि उसका सोल्यूशन तो है नहीं, सोल्यूशन तो है नहीं, उसके कारण क्या हो जाएगा भाई, वो सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी, वर्स्ट होती जाएगी, उससे फिर हार्म होने लग जाएगा, ठीक है। लास्ट है लाई अबाउट द पास्ट, यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग लाई मतलब भाई कुत्ता सो रहा है तो उसको सोने दो, फालतू का उसको डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब करोगे तो भाई वो उठ के काटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका बनता है नॉट इंटरफेरेंस इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सरबेट मैटर्स, ठीक है। भाई सिचुएशन पहले से ही खराब है, उसमें और इंटरफेयर करके सिचुएशन को खराब मत करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, खुद साइड हो जाओ, ठीक है। अगर कुत्ता सो रहा है सोने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि भाई अगर वो उठ गया तो भाई वो आपको काट सकता है, वो आपको परेशान कर सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। भाई अगर आप समय पर कुछ काम कर लेंगे, अ स्टिच इन टाइम लिटरल मीनिंग में जाए अगर, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। टाइम पे अगर किसी काम, टाइम को अगर आप स्टिच, टाइम से अगर आप स्टिच कर लेंगे मतलब कुछ सिल लेंगे तो आपका समय जो है वो बच जाएगा। सेव्स 9 मतलब समय जो है वो बच जाएगा। भाई ये हमने हमारे स्कूल में भी ये जो फ्रेज हमने देखे सुने हैं, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे समय से कुछ काम करने के लिए बोला गया है, तो हमें वैसा ही आंसर उसका ढूंढना है। टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर्स विथ क्लेवर मोनोइवस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। टाइंग अप कॉम्प्लेक्स मैटर्स के यहाँ पे बारे में बात नहीं हो रही है। देन पोकिंग एट समथिंग रेपिटेडली टू, पोकिंग के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे समय से कुछ काम करने के बारे में बात की, तो पोकिंग का यहाँ पे आंसर नहीं है। नेक्स्ट आता है मेकिंग अनलाइकली कनेक्शंस अमंग डिससेपरेट सब्जेक्ट्स, यहाँ पे ये भी काम नहीं है। यहाँ पे टाइम से कुछ काम करने के लिए कहा गया है। टाइमली एड्रेसल ऑफ अ प्रॉब्लम प्रिवेंट्स फ्यूचर एग्जर्बेशंस ऑफ द सेम, सही है, ठीक है। भाई फ्यूचर में जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है वर्स्ट हो जाए, इससे पहले कि भाई उसको अभी सुधार लो, प्रेजेंट में ही उसको सुधार लो, उसको एड्रेस कर लो, प्रॉब्लम को एड्रेस कर लो, सोल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करो, नहीं तो फ्यूचर में जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सही आंसर आपका है डी। फाइट फायर विथ फायर, फाइट फायर विथ फायर, आग को आग ही काटता है, आपने सुना होगा लोहे को लोहे काटता है, तो वैसी आग को आग काटता है, ठीक है। तो फाइट फायर विथ फायर, ठीक है, यह हमारे में है। उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, ओके। उसने मेरा ये नुकसान किया तो मैं भी उसका वही नुकसान करूंगा, ओके। चलिए हम देखते हैं। यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, ठीक है। यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। आमना सामना, भाई सामने वाला का फोर्स लगा रहा तो मैं भी वैसे ही फोर्स लगाऊंगा। यूज इंसेंडरी टैक्टिक्स टू डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉय की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, टैक्टिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो रही है यहाँ पर। एड फ्यूल टू फर्दर एस्केलेट अ फ्यूरी सिचुएशंस, नो, यहाँ पे भाई आग लगाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्कॉच वंस अपोनेंट विथ अ बैरेज ऑफ फायरिंग, ये भी बात नहीं हो रही, फायरिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो आपका सही आंसर क्या है, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रेटेजी ऑफ वंस ओपोनेंट टू काउंटर देम।
भाई जब सामने वाला जैसा फोर्स लगा रहा है मैं भी वैसा ही फोर्स लगाऊंगा। जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान का देखा था, भाई सामने वाला गोलियों से वार कर रहा है तो हम भी गोलियों से वार करेंगे। सामने वाला अगर इनोसेंट पीपल को मार रहा है तो हम भी इनोसेंट पीपल को मारेंगे। मुंह तोड़ जवाब देना, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब देना। फाइट फायर विथ फायर, फाइट फायर विथ मतलब मुंह तोड़ जवाब देना। चलिए नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंड नैरो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंड नैरो। यहाँ पे लिटरल मीनिंग से जाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिटरल स्ट्रेट एंड नैरो मतलब रास्ता जो है वो स्ट्रेट है और पतला भी है, स्ट्रेट है और पतला भी है। चलिए हम देखते हैं। बी एक्सेसिवली केयरफुल, तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। बी एक्सेसिवली केयरफुल के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग। चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। फॉलो द स्ट्रेट पाथ डिफाइंड बाय सोसाइटी, नो, ठीक है, लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है। टू नॉट डेविएट फ्रॉम वंस गोल, टू नॉट डेविएट फ्रॉम वंस गोल मतलब किसी को उसके गोल से हटाना नहीं है हमें, तो ये भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर आपका क्या है? ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, ठीक है। स्ट्रेट भी है और रास्ता पतला भी है, ठीक है। तो आप ऑनेस्ट भी है और आप मॉरल वैल्यूज भी है आपको, ठीक है। स्ट्रेट, नैरो, ऑनेस्ट एंड मॉरल, तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑनेस्ट एंड मॉरल। देखिए अभी इडियम फ्रेजेस जो है ना आपने भाई आपने किए हैं तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग इसका मतलब किसी के कान जो है वो जल रहे हैं, ये लिटरल मीनिंग है, ठीक है। भाई हम अब इसके एक्चुअल मीनिंग हमें ढूंढना है, ठीक है। द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है भाई ये तो सही बैठ रहा है। समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, भाई वो जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्यों जल रहा है? द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, तो आपका सही उत्तर क्या है? ये, ठीक है, आपका सही उत्तर क्या है? ये। बीइंग एक्सेसिवली जेलस ऑफ अदर्स, नो, सबसे अप्रोप्रिएट मुझे ये लग रहा है। द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, समवन्स ईयर्स आर बर्निंग, भाई जब हमने कानों से सुना तो भाई ये फीलिंग आ गई हमें, ठीक है। बीइंग एंग्री ड्यू टू अनफेयर क्रिटिसिजम्स, नो। इचिंग टू एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट, नो, खुजली होना भाई किसी के आर्ग्यूमेंट में घुसना, नो। तो सही आंसर क्या है? द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। तो भाई कुछ कुछ मीनिंग जो है ना आप पढ़ते से ही आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने जब पढ़ा तो मुझे बिल्कुल समझ में आ गया भाई यही आंसर है। द फीलिंग व्हेन समवन थिंक्स अदर्स आर टॉकिंग अबाउट देम, तो भाई ये क्या हो रहा है? मैं जलन हो रही है, मुझे फील आ रहा है कि भाई मेरे बारे में कोई बात कर रहा है, ठीक है। चले, टर्न वन स्टमक, टर्न वंस स्टमक मतलब किसी के पेट को घुमा देना, लिटरल मीनिंग है, ठीक है। किसी के पेट को घुमा देना, टर्न वन स्टमक, ठीक है। चलिए हम देखते हैं उससे रिलेटेड। बीइंग नॉसिटेड बाय समथिंग और समवन, बीइंग प्लेग्ड बाय समवन्स अपसेट, स्टमक अपसेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनेबल टू कोप विद द चेंजेस, स्विच साइड्स वाइल स्लीपिंग, नो। स्विच साइड्स बाय मतलब करवटें बदलना, ठीक है। अनेबल टू कोप विद द चेंजेस, नो। आपका सही आंसर क्या है? बीइंग नॉसिटेड बाय समथिंग और समवन, ठीक है। सो बीइंग नॉसिटेड बाय समथिंग और समवन, भाई किसी को एंग्री करना, किसी को अपसेट करना, तो उसका मतलब होता है टर्न वंस स्टमक, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये है, बीइंग नॉसिटेड बाय समथिंग और समवन। नॉसिटेड मतलब किसी को सिक करवाना, मतलब उसको बुरा फील करवाना, अपसेट करवाना, गुस्सा दिलवाना, तो इसे हम कहते हैं टर्न वन स्टमक। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, तो भाई यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर आपको जो है आंसर सामने पता चल जाएगा। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ, ठीक है। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर, भाई जो दुनिया है वो आपकी मुट्ठी में है। इसका मतलब क्या है? यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन व्हाट यू विश फ्रॉम लाइफ, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी है भाई, आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सामने पता चल गया। लाइफ इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट,
Life is puzzle you cannot ever unravel. The world will dazzle you if you are not careful. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं. कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स. कास्ट वंस ब्रेड अपॉन द वाटर्स. ठीक है, चलिए ठीक है. अगर हम लिटरल मीनिंग में जाए तो लिटरल मीनिंग में क्या होगा कि भाई किसी के ब्रेड को लेके पानी में फेंक देना. ठीक है, तो भाई ये आंसर नहीं है. चलो हम उससे मिलता जुलता एक आंसर ढूंढते. टू डाइल्यूट वंस इंटेंशंस. टू डाइल्यूट वन इंटेंशंस, नो. ठीक है. टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड. टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड्स. To while away one's time in unfruitful activity, no. The misdirect one's efforts in life. तो आपका सही उत्तर क्या है? To do good without seeking reward. Cast one's bread upon waters. ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी के लिए अच्छा करना बिना ही किसी रिवॉर्ड के, बिना किसी इनाम के. ठीक है, ओके. सो योर राइट आंसर इज to do good without seeking reward. चलिए नेक्स्ट आते हैं हम. In the following items, a pair of statements S1 or S2 is given. Select the most appropriate and relevant correlationships of the second statement to the first from among the options. ठीक है, अब ये S1 और S2 है. ठीक है, अब आपको बताना है, अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं. ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन से कॉन्ट्राडिक्ट है, कौन से कन्फर्म्स है, कौन से रीइंफोर्स है. ठीक है, ये आपको जो है सेंटेंस में अभी बताना है. तो पहला है द स्नोई एल्बाट्रॉस इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड. सो द स्नोई एल्बाट्रॉस S1, the snowy albatross is among the largest birds that fly in the world. भाई एक बर्ड के बारे में बात किया गया जो एक वाइट कलर की भाई एक ह्यूज बर्ड होती है. ठीक है, बड़ी ही एक ह्यूज बर्ड होती है. सो द स्नोई एल्बाट्रॉस इज, उसके बड़े बड़े पंख होते हैं. अमंग द लार्जेस्ट बर्ड्स दैट फ्लाई इन द वर्ल्ड. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ऐसा है कि भाई जो बर्ड है वो काफ़ी बड़ी है, वाइट कलर की, और वो लार्जेस्ट बर्ड्स होती है जो कि फ्लाई करती है इन द वर्ल्ड. अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं. अब हमें सेकंड वाला पढ़ना है कि भाई जो सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले के साथ कंफर्म कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, या रीइंफोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि स्ट्रांगली आंसर उसको सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है उसको. चलिए, इट हैज़ द वाइडेस्ट वाइंग स्पैन अमंग ऑल बर्ड्स विथ लेंथ्स रीचिंग अप टू 12 feet. अब भाई पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला गया है? पहले वाले सेंटेंस में बोला गया कि एक वाइट कलर की बर्ड है जिसके बड़े बड़े पंख हैं. और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला? उसके पंख के बारे में बात की गई है. ठीक है, और उसके उड़ने की ऊंचाई के बारे में बात की गई कि भाई वो कितना रीच कर सकती है, 12 feet. तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनता है, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं है, कॉन्ट्राडिक्ट्स वाले आपको हटा देने. कंफर्म यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? रीइंफोर्स हो रहा है. रीइंफोर्स क्या हो रहा है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के साथ वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है उसको. ठीक है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है. तो ये आपका आंसर है, रीइंफोर्सेस द फर्स्ट. सो इस टाइप के सेंटेंस में आपको क्या करना है? आपको S1 और S2 आपको अच्छे से पढ़ना है और आपको समझना है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट है या रीइंफोर्स कर रहा है या कंफर्म कर रहा है. ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके के उसके ऑप्शंस जो है वो दिखाई देंगे. यहाँ पर रीइंफोर्स कर रहा है मतलब उसको बहुत ही पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पहले वाले में बोला गया कि भाई वो बर्ड जो है बहुत ही लार्जेस्ट बर्ड है और वो पूरे वर्ल्ड में फ्लाई करती है. सेकंड वाले में क्या बोला गया? भाई सेकंड वाले में उसके बड़े बड़े पंख के बारे में बात की गई है और उसकी ऊंचाई के बारे में बात की गई है. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भाई? सेकंड वाला उसको रीइंफोर्स मतलब उसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, उसके और इंफॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है, पहले वाले में तो सिर्फ बताया गया कि भाई वो बड़ी बर्ड है, बहुत लार्जेस्ट बर्ड है वो. सेकंड वाले में क्या बोला गया? सेकंड वाले में बोला गया कि भाई बर्ड तो, पहले वाले में तो पता चल के बर्ड बहुत ही बड़ी है और वो वर्ल्ड में फ्लाई करती है, लेकिन सेकंड वाला भाई और इन्फॉर्मेशन दे रहा है. क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो उसके जो पंख है वो और बड़े हैं और वो इतनी ऊंचाई पर उड़ लेती है. तो इसलिए उसको हम रीइंफोर्स द फर्स्ट मतलब उसको सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, चलिए सेकंड वाला आते हैं. सेकंड वाले में है अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस. ठीक है, अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस.
ठीक है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है भाई? अजम्पशंस। अजम्पशंस के बाद जो साइंटिफिक जो रिसर्च होती है, जो साइंटिफिक थ्योरीज होती है, उसका क्या होता है भाई? वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द थ्योरीज क्या होते हैं? वो अजम्पशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्या होता है? वो अजम्पशन बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम उसका जो करेक्ट ट्रुथ है वो अभी तक फाइंड नहीं हुआ है, तो इसलिए हाइपोथेसिस क्या होता है? अजम्पशंस बेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस। जो साइंटिफिक थ्योरी है भाई, उसको पहले अजम्पशन बेस पे रखा गया, इज प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस। ठीक है, assumption base. Second है, after it is subjected to inquiry and it's proven, it becomes a thesis. पहले वाले में उसको assumptions पे माना गया, सेकेंड वाले में क्या किया गया? सेकेंड वाले में भाई इंक्वायरी हुई, ठीक है, और उसमें प्रूफ किया गया है कि वो इट बिकम्स अ थीसिस। भाई उसके ऊपर एक लंबी चौड़ी पूरी राम कथा लिख दे, ठीक है, वैसा उसको प्रूफ मिला है, वैसा उसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि ये ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। प्रूव्स द फर्स्ट, हाइपोथेसिस द फर्स्ट, चैलेंजेस द बर्डन ऑफ प्रूफ, ये हटा दिए, चैलेंजेस की बात नहीं हो रही है। एक्सटेंड्स द फर्स्ट, ठीक है, क्या है? एक्सटेंड्स द फर्स्ट, प्रूव्स द फर्स्ट, भाई पहले वाले को कोई प्रूफ नहीं कर रहा है, वो पहले वाले को प्रूफ नहीं कर रहा है। अ साइंटिफिक थ्योरी इज द फर्स्ट प्रपोज्ड एज थ्योरीज, भाई थ्योरी जो बन चुकी थी उसको लेकिन अजम्पशन बेस्ड था, लेकिन बाद में क्या हुआ है? बाद में उसी को भाई इंक्वायर किया गया, ठीक है, उसके बारे में ट्रुथ निकाला गया, और फिर उसके बाद उसके ऊपर थीसिस लिखी गई। थीसिस मतलब उसकी भाई पूरी स्टोरी लिखी गई, लाइक एवरी डू एंड डज सब लिखा गया उसके बारे में। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि वो प्रूव्स द फर्स्ट हो गया, हाइपोथेसिस द फर्स्ट ये भी नहीं लिखेंगे। हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंड्स द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाले थ्योरी को ही एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंड क्या किया भाई? उसी को लेकर आगे के लिए उसको प्रोसेस में डाला गया, उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया गया, ठीक है, इसलिए वो एक्सटेंड्स द फर्स्ट है। उसी को लेके आगे एक्सटेंड किया गया, उसी अजम्पशंस को लेके आगे पढ़ाई की गई, उसके बारे में थीसिस लिखा गया। ठीक है, जो भाई जो पीएचडी करते हैं वो थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च में उन्हें क्या मिला, क्या पाया उन्होंने, वो सब उसमें लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं थीसिस। ठीक है, एक पूरी बुक बनाते हैं वो, तो ये रिसर्चर्स करते हैं, जो पीएचडी करते हैं वो ये सब थीसिस बनाते हैं, और थीसिस के लिए उन्हें बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स द फर्स्ट मतलब फर्स्ट को ही लेके उन्होंने आगे की तरफ उसको कंटिन्यू किया। ओके, चलिए, ठीक है, तो एक्सटेंड्स द फर्स्ट मतलब टेक्स द आइडिया फर्दर बाय एक्सप्लेनिंग द नेक्स्ट स्टेप। पहले वाले को ही उन्होंने आगे कंटिन्यू किया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, द मैन हंट फॉर द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर स्टेट। ठीक है, परपेट्रेटर का मतलब क्या होता है? भाई जो इलीगल काम करते हैं, क्या करते हैं? इलीगल धंधा करते हैं, इलीगल बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो सो द मैन हंट मतलब एक पर्सन, मैन हंट का मतलब होता है एक पर्सन जो क्रिमिनल्स को पकड़े, जो सस्पेक्ट्स को पकड़े, ठीक है। तो जो भाई मैन हंट को जो है वो अपॉइंट किया गया, क्यों अपॉइंट किया गया है? फॉर द परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम। परपेट्रेटर मतलब जो इलीगल काम करते हैं, ठीक है, जो क्राइम कर रहे हैं, विच इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में भाई जो है परपेट्रेटर्स जो है वो फैले हुए हैं, तो उसके लिए मैन हंट को अपॉइंट किया गया है, जो क्रिमिनल्स को पकड़े उनको अपॉइंट किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर वॉज डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। ठीक है, एनॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि भाई बिग इन साइज, क्या होता है? बिग इन साइज। भाई क्राइम इतना सारा बढ़ गया है कि भाई जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। देयर वॉज डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। ठीक है, लोगों को ट्रिगर कर रहा है, लोगों के गुस्से को ट्रिगर कर रहा है। क्या ट्रिगर कर रहा है? कि भाई क्राइम जो है वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, क्राइम इतना बढ़ चुका है कि भाई लोग जो है वो गुस्से में हैं, ठीक है, वो पगला रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है? पहले वाले में एक भाई
मैन हंट को अपॉइंट किया गया है। किस लिए अपॉइंट किया गया? भाई जो क्राइम कर रहा है, ठीक है, जो गुनाह कर रहा है, जो पूरे शहर में, पूरे स्टेट में फैला हुआ है, जो इलीगल धंधा कर रहा है वो पूरे स्टेट में फैला हुआ है। सेकंड में क्या है? सेकंड में पब्लिक के बारे में बात की गई है कि भाई पब्लिक जो है बड़े ही गुस्से में है। किस लिए गुस्से में है? क्योंकि भाई क्राइम जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके लिए गुस्से में है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला है आपका इज अ प्रीकर्सर टू द फर्स्ट। प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है? प्रीकर्सर कि पहला क्या हुआ था। प्रीकर्सर टू द फर्स्ट, जो सेकंड वाला है वो प्रीकर्सर टू द फर्स्ट, मतलब कि पहले जो है पब्लिक जो है वो गुस्से में आई। क्यों गुस्से में आई? क्योंकि भाई क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो पब्लिक जब गुस्से में आई तब जाकर भाई गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि भाई हमें किसी को अपॉइंट करना चाहिए ताकि ये जो क्राइम कर रहा है उसको हम पकड़ पाए, जो पूरे शहर में फैला हुआ है उसको हम पकड़ पाए। तो क्या ये सही हो सकता है? यस। पहले भाई जैसे हमारे जो खड्डे हैं, ठीक है भाई, बारिश में क्या होता है, खड्डे हो जाते। जब तक एक आध एक्सीडेंट नहीं होता तब तक गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता कि भाई खड्डे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पहले एक्सीडेंट होना चाहिए, पहले कुछ लोग मरने चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट को रियलाइज होता है। तो ये क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ फर्स्ट। खड्डे ऑलरेडी है, गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब तक कुछ होगा नहीं तब तक उनको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये प्रीकर्सर ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो प्रीकर्सर ऑफ द फर्स्ट, प्रीकर्सर टू द फर्स्ट का मतलब क्या है? पहले लोग गुस्से में आए, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया कि भाई लोग बड़े ही गुस्से में हैं क्योंकि भाई क्राइम बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है, अगर हमने काम नहीं किया तो भाई बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो प्रीकर्सर फॉलोज द फर्स्ट। फॉलोज द फर्स्ट मतलब पहले अपॉइंट किया गया, उसके बाद भाई लोग गुस्से में आए, तो ये गलत है। कुछ तो हुआ होगा ना भाई, लोग गुस्से में आए तब उन लोगों ने एक्शन लिया। भाई एक्शन लेने के बाद भी लोग गुस्से में आए, क्यों? भाई तुम्हारे लिए ही तो उन्होंने एक्शन लिया ना, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि भाई हमें अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन भाई करने के बाद भी तुम गुस्से में, तो इसलिए ये गलत है। कॉन्ट्राडिक्ट तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। alters the premises, alters the premise of the first, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। ठीक है, alters the premises मीन्स आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है द प्रीकर्सर ऑफ द फर्स्ट। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि भाई जो आप फर्स्ट हो या सेकंड हो, आपको समझना है उसको, लेकिन यहाँ पे बोला कि प्रीकर्सर टू द फर्स्ट, मतलब जो सेकंड सिचुएशन है वो पहले आई है, उसके बाद पहला सिचुएशन बाद में आई है, तो ये प्रीकर्सर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई खुद के पर्सनैलिटी का अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। चलिए हम देखते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट, क्या बोला गया है? कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट। अब पहले वाले में बोला गया है अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के पर्सनैलिटी का अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। सेकंड वाले में बोला गया है सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। पहले वाले में पॉजिटिव बोला गया है कि भाई खुद का जो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन सेकंड वाले में बोला गया है कि सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट गोल बन चुका है बहुत से लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये ऑपोजिट जा रहे हैं। पहले वाले में आप बोलते हैं कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाले में आप बोल रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, एक में आप बोल रहे हैं कि सेल्फ अवेयरनेस करो, सेकंड वाले में बोलते हैं कि वो बहुत डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो आपका तो फिर आपका आंसर क्या बनता है? ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब यहाँ पे कुछ ऑपोजिट बात नहीं की गई है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट बात। तो यहाँ पे कुछ ऑपोजिट बात नहीं कही है। यहाँ पर भी अवेयरनेस के बारे में, यहाँ पर भी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, ओन अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, यहाँ पे भी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की गई है। तो ये बिल्कुल अलग नहीं बोला गया है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, तो यहाँ पे ऑपोजिट कुछ नहीं है। इस कॉन्ट्रपिंटल वाइज वर्सा द फर्स्ट। ठीक है,
वाइज वर्सा हम बोलते हैं रिवर्स कर दो तो सेम है, ये भी कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। कन्फर्म्स द फर्स्ट, कन्फर्म तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रास्ट द फर्स्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मतलब भाई, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है भाई, एक बता रहा है इंपॉर्टेंट है, एक बता रहा है डिफिकल्ट है, तो एक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब टोटली अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, आपने पता है कॉन्ट्रास्ट कलर्स आपने सुना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर भले भाई वो मैच होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रास्ट बोला जाता है उसको। ब्लैक कलर के साथ रेड कलर भाई कॉन्ट्रास्ट जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, दोनों में ही सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात की गई है, लेकिन एक में बोला गया है इंपॉर्टेंट है, एक में बोला गया है डिफिकल्ट है, बस इतना ही बोला गया है, लेकिन दोनों में सेल्फ अवेयरनेस की बात की गई है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन चेंज द contours of India's economy. Contours of India's economy. Liberalization changed the contours of India's economy. Contours का मतलब क्या होता है? शेप। Contours का मतलब क्या होता है? शेप। तो भाई जो लिबरलाइजेशन है, लिबरल का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्टूअर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब शेप ऑफ इकोनॉमी। भाई जो आज़ादी है, जो लिबरलाइजेशन है भाई, उसने इंडिया का भाई पूरा रूप रंग ही चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। इंडिया इज टुडे पॉइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया इज टुडे पॉइज्ड टू बिकम, ना व्हाट डू यू मीन पॉइज्ड? पॉइज्ड का मतलब होता है कि भाई इंडिया जो है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, इंडिया जो है वो रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है? रेडी टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले वाले में बोला गया है कि भाई लिबरलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमी को पूरा चेंज कर दिया है, और दूसरे में बोला गया है कि इंडिया इज टुडे रेडी टू बिकम वन ऑफ द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरे वाले में बोला गया है कि इंडिया जो है वो रेडी है इंडिया का एक मतलब वर्ल्ड का सबसे टॉप इकोनॉमिक्स बनने के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फर्स्ट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऑपोजिट कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, तो ऑपोजिट कुछ नहीं बात कर रहे हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया कि भाई लिबरलाइजेशन ने पूरे इंडियन इकोनॉमी का शेप ही बदल दिया, नक्शा ही बदल दिया। सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो रेडी है इंडिया वर्ल्ड का टॉप इकोनॉमिक्स बनने के लिए। दोनों ही इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो कॉन्ट्राडिक्ट्स नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट आपको हटा देना है। कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी। कोरिलेट्स टू द फर्स्ट, कोरिलेट्स टू द फर्स्ट, क्या कोरिलेट्स हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखिए, द सक्सेस कोरिलेट्स विथ लिबरलाइजेशन। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट के साथ कोरिलेट कर रहा है, मेल कर रहा है। ठीक है, उसका रिलेशन बन रहा है। कैसे रिलेशन बन रहा है? पहले सेकंड वाले में बोलते हैं कि भाई इंडिया जो है वो रेडी है वर्ल्ड का एक टॉप इकोनॉमिक्स बनने के लिए, और पहले वाले में बोल रहे हैं कि भाई जो आज़ादी है, जो लिबरलाइजेशन है, उसने इंडिया के रूप रंग को चेंज कर दिया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, वहाँ पे रिलेशन बन रहा है। दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि भाई इंडिया रेडी हो चुका है इकोनॉमिक्स बनने के लिए, और पहले वाले में बोलते हैं कि भाई जो लिबरलाइजेशन है इंडिया के इकोनॉमी को पूरा चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है कोरिलेट्स टू द फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, कोरिलेट का मतलब क्या होता है? कनेक्शन बताना, रिलेशनशिप बताना। तो यहाँ पे भाई रिलेशनशिप बता रहा है, दोनों रिलेशनशिप सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी सक्सेस हो रहा है, यहाँ पर भी सक्सेस हो रहा है। कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कोइंसाइड्स? कोइंसाइड्स का मतलब होता है सेम सेम, तो सेम सेम यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए आंसर नहीं बनेगा। तो आपका आंसर बनता है कोरिलेट्स टू दी फर्स्ट। चलिए, द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबली।
द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, ठीक है, द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड इन कॉन्ट्रोवर्टिबली, मतलब कि कोई डाउट नहीं है, जो भी फाइनल आउटकम निकल के आया है भाई उसमें कोई भी डाउट नहीं है। कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड, भाई हम उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि भाई उसमें कोई डाउट हो, ठीक है। फाइनल आउटकम हमारा ऐसा निकल के आया कि भाई उसमें डाउट होगा ही नहीं। चलिए हम नेक्स्ट वाला आते हैं, सेकेंड वाले में आते हैं। ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड। सेकेंड वाले में क्या बोल रहे हैं, ऑल आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स है, आर बेस्ड ऑन वेरिएबल्स मतलब चेंजेस, दैट कैन नॉट ऑलवेज बी फुल्ली अंडरस्टूड। भाई जितने भी आउटकम्स आए हैं जो कि वेरिएबल्स पे बेस्ड है, भाई उनके ऊपर हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं। पहले वाले में बोल रहे हैं कि भाई जो आउटकम निकल के आया वो डाउट ही नहीं है, उसमें डाउट ही नहीं है कि कुछ गलतियां हो, ठीक है, उसमें डाउट ही नहीं है, भाई ऐसा आउटकम निकल के आए। लेकिन सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि भाई जो आउटकम है भाई उसके ऊपर हम फुल्ली अंडरस्टूड, ठीक है, फुल्ली बेस्ड नहीं हो सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं उसके ऑप्शंस। फुल्ली रीइंफोर्सेस द फर्स्ट, ठीक है, तो इसका ऑप्शंस क्या है, फुल्ली रीइंफोर्सेस द फर्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेन्स व्हाई आउटकम्स कांट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है, भाई एक्सप्लेन कर रहा है कि जो आउटकम्स है वो प्रेडिक्ट हम क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भाई वो वेरिएबल्स है, चेंजेस है, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो स्ट्रांगली फर्स्ट के ऊपर कनेक्ट कर पा रहा है, रिलेशन बना पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, रीइंफोर्सेस द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। डेफिनेटली फॉलोज द फर्स्ट, नो, पहले वाले को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, पहले वाले के लिए वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, पहले वाले के लिए हम इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहले वाला बोलता है कि भाई द फाइनल आउटकम कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड इनकॉन्ट्रोवर्टिबली, ठीक है, ओके। तो पहला वाला क्या बता रहा है, पहले वाला बता रहा है हमें कि इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है, भाई वो इम्पॉसिबल है फाइनल रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना विथ कंप्लीट सर्टेनिटी मतलब कभी भी चेंजेस हो सकते हैं, तो भाई हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड वाला भी क्या बोल रहा है, ऑल आउटकम्स आर बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, ठीक है, चेंजेस के ऊपर बेस्ड है, तो दैट कैन नॉट बी ऑलवेज फुल्ली अंडरस्टूड, तो भाई उसको फुल्ली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर क्या बनता है, फुल्ली रीइंफोर्सेस द फर्स्ट। जो सेकंड वाला है भाई उसके बारे में बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है कि भाई जो पहला वाला है वो पहला वाला बोलते हैं कि भाई इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना फाइनल रिजल्ट को, ठीक है। तो आपका जो आंसर है फुल्ली रीइंफोर्सेस द फर्स्ट है। चलिए 47, मास्टरी ओवर एनी आर्ट फॉर्म रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। भाई किसी भी कला को पाने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए भाई सालों साल की मेहनत चाहिए उसमें, और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। डेडिकेशन मतलब आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन, परसिवरेंस मतलब रेगुलरली उसको करते रहना है। इट टेक्स 10,000 hours ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। सेकेंड वाले में क्या बोला गया है, इट टेक्स 10,000 hours, अब भाई नीचे सेकेंड वाले में टाइम बताया गया, इट टेक्स 10,000 hours ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। अब चलिए देखते हैं, इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट, क्या बोला गया है, इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पर कोई काम का नहीं है, इज नॉट कंसिस्टेंट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी बोल रहे हैं, यहाँ पर भी कंसिस्टेंसी बोल रही है, तो नॉट कंसिस्टेंसी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी भाई परसिवरेंस में रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में बात करके, यहाँ पर भी रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो दोनों कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी कंसिस्टेंट, यहाँ पे बोला गया भाई डेडिकेशन है परसिवरेंस, और यहाँ बोला गया 10,000 hours ऑफ प्रैक्टिस टू बिकम,
तो यहाँ पर भी रेगुलर प्रैक्टिस बोल रहे हैं, 10,000 आवर्स मतलब रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इस फुली कंसिस्टेंट विथ फर्स्ट हो सकता है। इस मार्जिनली कंसिस्टेंट नहीं होता, मतलब आधा आधा नहीं बोल सकते हम। इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट, नो। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट, इज फुल्ली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट। ठीक है, मीन्स दे सपोर्ट ईच अदर, दे सपोर्ट। पहले वाले में बोल रहे हैं कि भाई मास्टरी हासिल करने के लिए आपका डेडिकेशन और परसिवरेंस चाहिए, और सेकंड वाले में बोल रहे हैं कि भाई ये टेक 10,000 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। भाई यहाँ पे टाइम के बारे में बताया कि भाई इतने घंटे की प्रैक्टिस जो है वो चाहिए एक एक्सपर्ट बनने के लिए एक फील्ड में। ठीक है, तो इसलिए भाई वो दोनों ही सही जा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सही है भाई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाई हमें डेमोक्रेसी के बारे में बात किया गया है, तो भाई द ब्यूटी ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, इंडिया के डेमोक्रेसी की जो सुंदरता है वो कहाँ पर है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। कैसे आई है, कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, क्योंकि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो बहुत ही ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो वहाँ से आई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्री सिविलाइजेशन इथोस। इथोस का मतलब क्या होता है, मैनर्स। इथोस का मतलब क्या होता है, मैनर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड्स द कलेक्टिव वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, वो क्या होल्ड करता है, वो कलेक्टिव वैल्यूज होल्ड करता है। किसकी, ऑफ द कंट्री सिविलाइजेशन इथोस मीन्स मैनर्स। कंट्री सिविलाइजेशन मतलब डेवलपमेंट, उसके वैल्यूज को वो होल्ड करता है। चलिए अब हम देखते हैं, connects with the mentions of Indian democracy in the first, connects with the mention of Indian democracy with the first। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं बता रहा है, ठीक है, तो ये वाला नहीं रहेगा। provides a reason for the assertion regarding the constitution। assertion का मतलब क्या होता है, strongly believe करना। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट बोला गया उसको स्ट्रांगली बिलीव करना, उसे असर्शन कहा जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बोला गया है कि भाई इंडियन डेमोक्रेसी एक सुंदरता है, और सुंदरता कहाँ से आई है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आई है। और सेकंड में बोला गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे वैल्यूज़ को होल्ड करता है, ठीक है, मैनर्स को होल्ड करता है। तो आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन, प्रोवाइड्स अ बिलीफ रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैनर्स के बारे में बात करें, इसका मतलब कि यहाँ पे बिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ भाई कंट्री जो हमारी जो डेमोक्रेसी है भाई बहुत ही ग्रेट है, बहुत ही ग्रेट है, उसे हमारी इंडिया की सुंदरता जो है वो निखर कर आती है। थर्ड वाले में जाते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्स द असर्शन अबाउट द डेमोक्रेसी। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, हैज़ नो कनेक्शन विद द फर्स्ट, नो। तो आपका सही आंसर क्या है, प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट। ठीक है, प्रोवाइड्स अ रीजन फॉर द असर्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, रोसेट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर। ओके, सो रोसेट इज एन एडजेक्टिव ऑफ द रोज फ्लावर। सो रोसेट का मतलब क्या होता है, ये हम एक ब्राइट, हम बात कर रहे हैं ब्राइट या फिर एक चीयरफुल के बारे में बात करें तो रोसेट का मतलब क्या होता है, ब्राइट कलर, ठीक है, बिल्कुल खिलता हुआ। तो फ्लावर्स क्या होते हैं, रोज फ्लावर क्या होता है, बिल्कुल खिलता हुआ, उसको देख के बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रोसेट का मतलब क्या होता है, ब्राइट। क्या मतलब होता है, ब्राइट, ठीक है। द रोज इज अ पावरफुल पोइटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। भाई जो रोज़ जो है, भाई जब ये हम पोएट्स लिखते हैं, जो कवि जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रोज़ फ्लावर को भाई एक पावरफुल एक सिंबल मानते हैं, बहुत से लैंग्वेजेस में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, एक्सपांड्स द फर्स्ट, क्या भाई पहले वाले को कुछ एक्सपांड कर रहा है वो। रोसेट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर। पहले बोला गया है कि रोसेट जो है मतलब जो ब्राइट है, जो कलर है, वो एडजेक्टिव है किसका, रोज फ्लावर का, ठीक है, ये हम मान गए। एक खिलता हुआ रोज जो है वो एक खिलता हुआ फ्लावर है, ब्लॉसम करता है, बहुत ही खुश मिजाज दिखता है, तो उसको वो एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है।
सेकेंड वाले में क्या बोला गया है? द रोज इज अ पावरफुल पोइटिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। रोज को जो है भाई पोयम लिखने के लिए भाई उसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक्सपांड्स द फर्स्ट, एक्सप्लिकेट्स द फर्स्ट। ठीक है, एक्सप्लिसेट्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसेट्स का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द आइडिया, आइडिया को एक्सप्लेन करना। तो यहाँ पर कोई आइडिया एक्सप्लेन हो रही है? नो। यहाँ पे रोज फ्लावर दोनों, ऊपर वाले में उसके एडजेक्टिव के बारे में बात कर, उसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं, नीचे वाले में भी उसके गुण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द फर्स्ट, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा है। कोइंसाइड्स विद द फर्स्ट, यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है। कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है? सेम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो सकता है? एक्सपांड्स द फर्स्ट, पहले वाले में उसके एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई रोज जो है, और उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? और उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। क्या क्वालिटी बता रहे हैं? कि रोज फ्लावर ऐसा है कि भाई उसको पोयम बनाते समय, कविता लिखते समय कई बहुत सारे लैंग्वेजेस में उसको यूज किया जाता है। तो उसी को एक्सपांड किया गया है, उसी को ही आगे खींचा गया है, बढ़ाया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो सही आंसर है आपका एक्सपांड्स द फर्स्ट। चलिए, द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। ठीक है, ये फ्रेज भाई हमने बहुत सुना है। जल्दी उठेंगे तो भाई हमारे काम भी जल्दी होंगे। ठीक है, द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। दोज हु टेक एक्शन अर्ली और अराइव फर्स्ट हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस। ठीक है, समय से कुछ काम करेंगे, जल्दी उठ के काम करेंगे, ठीक है, समय से एक्शन लेंगे तो भाई आपका काम भी समय से होगा। टू गो अबाउट वंस टास्क expeditiously is to achieve one's goal. ठीक है, to go about one's task expeditiously to achieve one's goals। भाई अपने टास्क को अचीव करने के लिए भाई उस पर कड़ी मेहनत करना। क्यों मेहनत करना? भाई हमें कोई टास्क दिया गया है, उस टास्क को बिल्कुल कड़ी मेहनत, बिल्कुल अच्छे से हार्डवर्क करना। क्यों हार्डवर्क करना? ताकि हम उस गोल को अचीव कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं। मेक्स असर्शन अबाउट द फर्स्ट, मेक्स असर्शन अबाउट द फर्स्ट। ठीक है, पहले वाले में बोला गया है कि भाई जल्दी उठोगे तो काम खत्म होगा। दूसरे वाले में बोला गया है कि भाई जो काम है उसको शिद्दत से करिए, उसको मेहनत से करिए, तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो क्या सेकेंड वाला पहले के ऊपर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे रहा है? सेकेंड पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स अ मेट्रोफोरिकल रीअसर्शन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल, प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल मतलब क्या होता है? आपने मेटाफर सुना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, आपने मेटाफर सुना होगा। तो ये मेटाफोरिकल मतलब ये एक पोएम से रिलेटेड है। मेटाफोरिकल रीअसर्शन, रीअसर्शन मतलब दोबारा से उस शब्द को, दोबारा से उस वाक्य को रिपीट करना। तो प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल रीअसर्शन ऑफ द फर्स्ट मतलब क्या है? कि जो पहला जो सेंटेंस जो यूज किया गया है उसी को ही एक्सपांड कर उसी को ही एक अलग तरीके से घुमाकर बोला गया है। पहले वाले में क्या बोला है? द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। समय से उठेंगे, काम पर ध्यान देंगे तो आपका काम, आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। सेकंड वाले में क्या बोला गया है? जो काम कर रहे हैं उस पर मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो भाई ऊपर वाले को ही बस सेकंड में उसको एक घुमा फिरा कर बोला गया है। ठीक है, उसको और एक्सटेंड करके बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर बनता है प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिकल रीअसर्शन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, पहले वाले को ही आपको एक अलग तरीके से उसको बोला गया है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। मीनिंग दोनों का सेम है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे हो नहीं रहा है, री इन्फोर्स यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही सेम है, बस दोनों सेकेंड वाले को एक्सपांशन फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, चलिए, तो this was all for today. 50 questions we have covered from 21 to 50. If any doubt is there, you do comment and ask your doubt. Okay, tomorrow we'll solve the other questions of the question paper. Okay, till now, take care.
Have a nice day. So it's a very big video, sorry for that, but I'm helpless because like if I'll post the videos in a part, then it will be confusing for you. Okay, then it should be linked up, the video should be linked, so that it will be easy for you to connect with the questions. So that's why the video is almost more than uh, hour, more than 1 hour. Okay, so you please do watch the videos. If any doubt is there, you comment. For today, for now, that's all. Have a nice day. Take care. Bye bye.